Hello, guys. Welcome to Inspiring Minds. Today is our fresh episode of the MCA journey. So, today we have our special guest with us. So, without wasting any time, let's get started. So, हाँ आशीष थोड़ा सा अपने आप को Hello, इंट्रोड्यूस कर दो. hello. This is Dr. Ashish, and I have cleared my FMG exam in the August session. And the August session was my second attempt. I had scored 143 in my very first attempt, and I had joined classes for that attempt. And in my second attempt, I got a score of 157, which is quite reasonable, but did my job. Very So, good, very and I good. didn't attend any classes. I didn't attend any classes during my second attempt, but I used the same previous notes. And the thing students are confused that uh, if I'm not understanding a particular subject, see, I had a problem with my pathology, and I was not able to understand it. But then Mm-hmm. I changed my source completely. I started studying from a new teacher, a new mentor, and I made new notes. And then pathology was one of my best subjects in the second attempt. That's what Okay. usually what we get to know is So, Ashish, usually what we get to like hear is that we'll dive deep into your journey a moment later. But for now, let's start okay, from the very beginning. Like how it all started. First of all, ये थोड़ा सा कैंडिड इंटरव्यू रहने वाला है. इट्स नॉट लाइक कोई स्क्रिप्ट हो इसके लिए या कुछ भी हो. दो वी हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चंस विद अस. सो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपने जर्नी स्टार्ट क्यों करी. Why did you think of becoming a doctor at the first place? Because when I see these days बहुत difficult है आजकल like to tell someone कि आपको पढ़ना है, you know. Motivation is not something जो आप daily किसी को दोगे और वो उसी पीक पे रहेगा. समझ रहे हो. Until and unless किसी को अंदर से ही वो एक ड्राइविंग फोर्स होगा, you cannot sustain for a longer time. आप कुछ टाइम पढ़ सकते हो, आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स 2 दिन में पढ़ाई करके पास हो सकते हो, जो सब हर जगह यही होता है. बट आई वॉन्ट टू नो लाइक अभी एक फ्रेश एपिसोड फ्रेश सीरीज हम ये कर रहे हैं जिसमें थोड़ा सा कैंडिड टॉक चाहिए कि दिल से दिल तक, यू गेटिंग इट. सो मुझे ये बताओ कि आपने ये क्यों सोचा कि यार मुझे डॉक्टर ही बनना है. वो स्पार्क था नहीं था, बाद में आया, किसी के कहने से आपने किया, फैमिली प्रेशर था, जो भी है वो बताओ पहले तो. नहीं honestly sir, I had no such thing as becoming a doctor. सोचा भी नहीं था कि डॉक्टर बनना है ऐसा कुछ. But my father wanted me to be a doctor, and he said it's a good thing, it's a noble profession, and I want you to be a doctor. So listening to my father, मेरा ऐसा कुछ फिक्स नहीं था. I had no aim, मतलब मुझे ये बनना ही है. So I had nothing. So whatever my father said, कि you should become a doctor. So that is why I said okay, I'll become a doctor. And then I didn't know how tough it was going to be for me. So so But so then when you, sorry to interrupt, but when your father told you you have to become a doctor, आपको नहीं पता था what your own aim is. So आपने कब decide किया कि हाँ चलो ठीक है, अब बोल रहे हैं अच्छा प्रोफेशन है तो अब मैं करता हूँ. So वो एक किक स्टार्ट कहाँ पे था. actually the problem was sir, I scored very less marks in my 12th. और Okay. नीट में भी बहुत कम मार्क्स थे. So I was not really confident कि मतलब what I can do, what my capability is, और what my as in मतलब मैं क्या कर सकता हूँ आगे, ऐसा कुछ सोचा नहीं था. तो मार्क्स भी कम आ गए. So I was very confused. And then when I had someone like my father telling me कि you can do this, so this is where I thought कि if he thinks I can do it, then I can actually do it. Okay. So then we went through the process and I got the admission. And until the first year started, I had no idea. But क्या हुआ, suddenly exam start हो गए. Mhm. MBBS में क्या होता है, days keep going so fast. मतलब Mhm. हर महीने में एग्जाम आने लगता है. तो मतलब वही ना कि पता चल गया मैं फर्स्ट एग्जाम. स्टार्टिंग में हमें लगता है कि जर्नी 5 साल 6 साल की होने वाली है, बट जब एक बार एंटर करते हैं तो वो टाइम बहुत तेजी से जाता है. एंड में जाके समझ आता है कि यार इतना सारा टाइम तो खत्म हो चुका है. हाँ, तो what हमारे कॉलेज में हर महीने में एग्जाम होता था. तो as soon as the first exam was there in the first month, I failed it dramatically. फेल हो गया. So that was like मतलब what do you say, एक सेटबैक था moment कि of truth. क्या हो गया.
हाँ रियलिटी हाँ, चेक? moment of truth, reality check. Yes, it was a reality check, very harsh reality check. So that is when I started to think कि अभी इसको lightly नहीं ले सकते that. And my college has history that they don't usually just pass the students. So that is when I thought कि मतलब पढ़ाई तो करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, it was new all. I graduated from Davao Medical School Foundation, Philippines. So I had never been outside my state. Firstly, I'm from Maharashtra. महाराष्ट्र में कहाँ When से? I went there, it was Maharashtra. I'm from Shirdi. Okay, शिरडी से. शिरडी. तो क्या हुआ? I went there and सब नया नया था, तो थोड़ा फिलीपींस का माहौल लग गया, घूमना वगैरह चालू हो गया दोस्तों के साथ. एक सेकंड यार, एक सेकंड पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ. हम यहाँ पे किसी को भी प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए. हम किसी को नहीं कह रहे कि यहाँ पे जाओ यहाँ पे मत जाओ, जो भी रियलिटी है हम वो डिस्कस कर रहे हैं अभी. वो हाँ, नहीं, I'm just sharing my journey, how it happened for me. बिल्कुल. हाँ, तो ऐसा हुआ, तो मजे वगैरह चल रहे थे, तो अचानक से रियलिटी चेक हो गए. तो मतलब आई फेल्ड वेरी बैडली, मतलब बहुत बुरे मार्क्स थे. सो देन आई रियलाइज्ड मतलब पढ़ाई तो करना पड़ेगा. बट फिर क्या हुआ, आई सडनली हैड लॉस्ट ट्रैक. मतलब 3-4 महीने से पढ़ाई नहीं किया था और सडनली पढ़ाई करना, और ये सोचते सोचते फिर से अगले 15-20 दिन में नया एग्जाम आ गया, मतलब द नेक्स्ट एग्जाम. अच्छा. तो इतना फास्ट, मतलब द डेज वर गोइंग सो फास्ट, क्योंकि सब दोस्तों में इसमें इधर उधर घूमने में दिन जा रहे थे. तो ऐसा हुआ, धीरे धीरे करके आई गॉट ग्रिप ऑफ द मेडिकल फील्ड. मतलब कि मतलब इसमें पढ़ाई होता है, तुम मजे करो वो अलग चीज है, बट पढ़ाई जो होता करना ही पड़ता है. मतलब दिस इज द नेसेसिटी. मतलब तुम 4 घंटे पढ़ो, तब जाके तुम यू विल हैव अ फीलिंग कि मतलब आई हैव टाइम टू स्पेयर एंड आई कैन एंजॉय इन दिस स्पेसिफिक टाइम. आशीष, यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि तुम मजे कर रहे हो. मैंने इनिशियली क्यों पूछा था कि व्हाट वाज योर ड्राइविंग फोर्स, बिकॉज समझ रहे हो, इफ यू डोंट हैव योर ओन ड्राइविंग फोर्स, अगर आप किसी और के इन्फ्लुएंस के चक्कर में मेडिसिन ले लेते हो ना, तो बहुत बार मुश्किल हो जाता है. हाँ. अगर आपका खुद का एम है, आपका exactly. खुद का क्लियर कट, यू नो व्हाई यू आर डूइंग दिस, राइट, देन यू डोंट नीड एनीवन टू टेल यू कि यार आपको 3 घंटा 4 घंटा पढ़ना है डेली, आपको 10 घंटा पढ़ना है डेली, आपको नहीं पढ़ना है. देन इट्स योर ओन जर्नी. आपको ये होता है कि यार मेरा खुद का डिसीजन है, मेरे को इस पे लाइक आई हैव टू स्टैंड ऑन दिस. सो अगर किसी और की वजह से करते हैं तो इट गेट्स डिफिकल्ट. करेक्ट. हाँ, फिर so actually I failed in my first year, so I failed in 3 of those subjects. So I had to repeat 6 months for those subjects. अच्छा. And then after that I started actually मतलब studying, मतलब जो पढ़ाई करना, वो फेल होने के बाद I got a very harsh reality check, and उसके बाद से मैं पढ़ाई किया. फिर I didn't fail in any of the exams later on. अच्छा. But that was pretty hard for me to take, because क्या हुआ, जो दोस्त थे, मतलब बहुत सारे दोस्त थे, तो वो लोग तो पास हो गए, but I was 6 months behind them now. Okay. So like semester back kind of a thing, right? हाँ, एक semester back. So 6 months I repeated, and then I got promotion to second year. Okay. तब तक तो देर हो गई थी, but I had realized कि मतलब पढ़ाई तो करना पड़ेगा. So that is where I started studying, मतलब मतलब proper the way I started gaining interest. Okay, at that moment of time आपको क्या लगा था कि like अभी पढ़ना है एग्जाम्स पास करने के लिए या आगे के लिए? तो उस टाइम पे क्या अप्रोच था? नहीं, ये अप्रोच मेरा एग्जाम पास होने तक का ही था. मतलब एग्जाम अभी नेक्स्ट वीक है, तो आई विल स्टार्ट स्टडीइंग इन दिस वीक ओनली. एक हफ्ता पहले, 5 दिन पहले, 4 दिन पहले. दैट वाज माय होल अप्रोच टिल आई वेंट इन द लास्ट ईयर में जाने के बाद फिर सब लोग के मुंह से सुनाई दे रहा था कि अभी एफएमजी आने वाला है, एक साल में एफएमजी देना है. मतलब as soon as we graduate कि we have to aim for the FMG. तो तब जाके देखा बच्चे गाइड से पढ़ रहे हैं, इंडिया से बुक्स ऑर्डर कर रहे हैं, इंडिया से बुक्स आ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, रोटेशन, क्लिनिकल रोटेशंस में जा रहे हैं बच्चे, स्टूडेंट्स आर यूजिंग ऑल दीज नोट्स जो इंडिया से आया है. आई हैड नो आइडिया अबाउट दैट आल्सो. बट फिर क्या हुआ, जो फ्रेंड सर्कल होता है ना, once they start reading and you see books with them, मतलब जैसे गाइड्स और वो सब आया, तब जाके मुझे भी लगा मुझे भी कुछ स्टार्ट करना चाहिए. बट आई डिडंट स्टार्ट बिकॉज स्टिल अगेन मतलब ऐसा मोटिवेशन नहीं था अंदर से. आई हैड नो मतलब
मतलब मैं क्या करता था, रोटेशन जाना है बस, जितना असाइनमेंट है या फिर आज का जो केस है मैं उतना ही पढ़ के जाता था बस। ऐसा होता था, मतलब डे टू डे बस जो भी रहेगा, एक सपोज इफ फॉर्मेलिटी टीचर, सॉर्ट ऑफ थिंग। फॉर्मेलिटी सॉर्ट ऑफ, मतलब आई वाज क्यूरियस टू लर्न, बट ऐसा स्पेसिफिकली आई डिडंट यूज टू टारगेट। मतलब देखो, अगर मैं आज हॉस्पिटल में था एंड आई फाउंड अ केस एंड आई सॉ अ केस, तो आई यूज्ड टू गो बैक होम एंड आई यूज्ड टू रीड ओनली दैट केस। मतलब नॉट इन अ सेंस कि मतलब मुझे कुछ दिन बाद एफएमजी देना है या फिर मेरा एग्जाम है। आई यूज्ड टू बी क्यूरियस कि मतलब आज का केस जो मैंने हॉस्पिटल में देखा, आई यूज्ड टू जस्ट रीड अबाउट द केस। लाइक यू डिडंट हैव मतलब अ गोल आगे क्या होने वाला है, मतलब जितना है मिला है आगे क्या सिर्फ होने उतना वाला ही है, पढ़ा, उसके आगे पीछे का कुछ हाँ और उतना, उसको हाँ इंटीग्रेट कुछ भी नहीं किया। नहीं, आई यूज्ड टू इंटीग्रेट बट ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। मतलब सपोज देखो, आज मैंने टेटानस पढ़ ली, तो आई विल जस्ट गो टू हैरिसंस, उसमें से टेटानस का पार्ट जितना है आई विल जस्ट रीड दैट, दैट्स इट। तो ओके। उसका मैनेजमेंट ये सब पता था, तो ऐसा करता था मैं। एंड देन अगेन नेक्स्ट डे, अगेन इफ आई फाइंड समथिंग न्यू, तो आई विल जस्ट स्टडी दैट केस। ऐसा मतलब ओके। ऐसा होता था लास्ट ईयर में। और उसके पहले तो थर्ड और सेकंड ईयर में तो जितना एग्जाम में आने वाला है ना, तो उसमें कैसा होता, पीपीटीज रेडी होते थे, नोट्स रेडी होते थे, सीनियर्स के नोट्स होते थे, तो बस उतना पढ़ के जाते थे एग्जाम। आई यूज्ड टू मैनेज टू पास द एग्जाम। ठीक है। एंड सो देन ये तो आपकी व्हेन आई, ये तो एमबीबीएस का हुआ। एंड देन सीरियसली स्टार्ट स्टडिंग कब हुआ, मतलब जो सीरियस वाला एकदम पढ़ा एफएमजी के लिए, मेरे सीनियर्स थे। मतलब जो व्हेन आई फेल्ड 6 मंथ्स आई वाज बैक, बट जो बाकी 6 महीने पहले जो मेरे दोस्त लोग यहाँ पे आए, तो they were in Delhi, so they all were staying in Gautam Nagar, they joined classes and they did pretty good। मतलब बहुत सारे लोग पास हो गए, मतलब जो मेरे फ्रेंड सर्कल में से। तो I was very confident, I was like अभी वो लोग कर सकते हैं तो I can also do it। so I joined the same institution these people joined and I started there। so तब जाके I started, मतलब basically my first and second year subjects were very very weak। मतलब कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। एंड मतलब जैसे फिजियोलॉजी तो ऐसा नया नया सा था, मतलब ऐसा ऐसा लग नहीं रहा था कि फिजियोलॉजी पढ़ा भी 5 साल एमबीबीएस में। मतलब वही अनैट, फिजियो, पैथोलॉजी तो बायोकेम, माइक्रो, पैथो, फार्मा, ये सब के जो वीक होते हैं। हाँ, नहीं बट बायोकेम और एनेट फिर भी थोड़ा सा, मतलब यू गेट टू, मतलब बायोकेम थोड़ा सा इजी जाता है फर्स्ट ईयर में भी। बट एनेट भी कैसा होता है, एनेट यू गेट टू सी इमेजेस। हमारे कॉलेज में स्पॉटिंग्स होता था, स्पॉट एग्जाम्स, तो उसमें डेड बॉडीज पे, कडावर्स पे दे यूज्ड टू पुट द मार्किंग सम। सो आई वाज फेमिलियर विद एनाटॉमी। मतलब ऐसा तो नहीं था कि मतलब दिस इज कंप्लीटली, मतलब आज क्लाविकल दिखा दिया तो ऐसा तो नहीं पता चल रहा था अरे कुछ और, मतलब व्हाट इज दिस, समझ तो आता था। बट फिजियोलॉजी वैसे नहीं था। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, मतलब पैथोलॉजी का बस लाइट्स पता चलता। हाँ, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स बहुत वीक, मतलब बेसिक नॉलेज जीरो था एकदम। बट जैसे सर्जरी है, मतलब जो क्लिनिकल्स बहुत अच्छे थे, क्योंकि हॉस्पिटल में जाके बिकॉज ऑफ हैविंग दैट क्यूरियोसिटी कि मतलब व्हाट इज दिस केस, क्या है, कुछ सीखना है, वो हिसाब से डॉक्टर बनना है वो हिसाब से क्लिनिकल्स बहुत अच्छे थे मेरे। मतलब माय बेस्ट सब्जेक्ट्स इन बोथ द अटेम्प्ट्स वर क्लिनिकल्स। उसमें भी सर्जरी ईएनटी एंड ये दो क्लिनिकल सब्जेक्ट मतलब बहुत स्ट्रांग ऑफ था। नहीं, ओबीजीवाई वीक था बिकॉज आई थॉट कि मतलब आई एम नॉट बिकमिंग एन ओबीजीवाई, सो मतलब ऐसा टारगेट नहीं था, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। बट जो सेकंड, मतलब इन द फर्स्ट अटेम्प्ट आई अंडर एस्टिमेटेड द सब्जेक्ट। मतलब मैंने पढ़ा था बट आई डिडंट रिवाइज इट प्रॉपर्ली। मतलब आई ओनली डिड 2 रिविजन्स in the first attempt for OBGYN। I'll come to that। I want to know the difference in the approach of your first and second attempt। but पहले मुझे ये बताओ कि फिर जब आपके seniors जो पहले colleagues थे, when they became the seniors, they told you about, they gave you an insight कि क्या exam है, कैसे करके पास होना है, तब preparation start करा या कुछ आपने final year में अपना start कर दिया था already? नहीं सर, final year में I didn't start preparation। मतलब honestly नहीं start, कुछ नहीं किया था, कुछ start नहीं किया था। मतलब लिटरली मैं स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स ही पढ़ रहा था। मतलब जो बुक्स होते वही उसमें से पढ़ रहा हूँ। और फिर इंडिया के फिर नोट्स, क्योंकि कैसा था मेरे दिमाग में कंसेप्ट था कि मतलब सीनियर से सुना था कि इंडिया आओ, 6 महीने अच्छे से पढ़ाई करो, जो नोट्स देते क्लासेस वाले
वही पढ़ो, 6 महीने में पास हो जाते हो। मतलब ऐसा कंसेप्ट बन चुका था दिमाग में कि एक इंडिया आके शॉर्टकट बस जैसा 6 बना महीने हुआ है अच्छे से कि पढ़े। हाँ, इंडिया आके पढ़ाई करो, 6 महीने में अच्छे से पढ़ाई करो, अपने आप पास हो जाते। तो वो कंसेप्ट लेके आया था मैं कि मतलब इंडिया जाऊंगा, अच्छे से पढ़ाई करूंगा 6 महीने और पास हो जाऊंगा, ऐसा। ठीक है। So that was, then I came to India and then I actually started studying very seriously। मतलब जो गौतम नगर के स्टूडेंट्स का जैसा शेड्यूल होता है ना कि क्लासेस करो, लाइब्रेरी में जाके बैठो, पढ़ाई करो, so that is what I was following, but still I failed in the first attempt, but I was disappointed क्योंकि इतना पढ़ाई मैंने मतलब I had never done so much तो serious एक studying in सेकेंड, my entire life। तो your first attempt was 2019 December। Yes sir, 2019 ओके, सो December। सो उसमें उसमें क्या क्या स्ट्रैटेजी थी उस टाइम पे? सारे सब्जेक्ट्स किए थे, रिवीजन नहीं किया था? हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यू डू? कितने मॉक टेस्ट दिए? उसमें क्या किया था? क्या माइंडसेट था वो उस हाँ, अटेम्प्ट के लिए? उसमें एक्चुअली क्या हुआ, आई वाज अटेंडिंग द क्लासेस ऑफ अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। तो ओके, आई वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट द इंस्टीट्यूशन का फैकल्टी जो बता रहा है, और वॉट एवर द मॉक टेस्ट इंस्टीट्यूशन ले रहा, मतलब मेरा एक्स्ट्रा कुछ अलग से कुछ नहीं कर रहा था। मतलब आज आज मॉक मतलब नेक्स्ट वीक मॉक टेस्ट है, तो इसके 7 दिन पहले अनाउंसमेंट हो रहा था, तो आई यूज्ड टू स्टडी ओनली फॉर दैट। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आज मैं अलग से अपना खुद का मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, ऐसा नहीं हो रहा था। और फिर क्या होता था, क्लासेस चलते थे दिन भर, 8-8 9-9 घंटे चलता था क्लासेस। मतलब तो सेल्फ फिर रात स्टडी को नहीं था 5-6 फर्स्ट घंटे अटेम्प्ट पढ़ाई में? होता था। हाँ, सेल्फ स्टडी, यू क्या डिड सर? नॉट डू एनी सेल्फ स्टडी इन द फर्स्ट अटेम्प्ट? नहीं, मतलब पर्टिकुलरली मतलब इतना एकदम थोरो सेल्फ स्टडी नहीं हो पाया। मतलब आई यूज्ड टू स्टडी ओनली 4 to 5 hours एवरी डे आफ्टर द क्लासेस। मतलब 8 घंटे की ओके, क्लास है, 8 घंटे लाइब्रेरी में जाके बैठो और पढ़ाई करो, यही चल रहा ओके, था। और उसमें भी कितना प्रोडक्टिव है कितना नहीं, अभी दैट इज डिफरेंट, बट आई यूज्ड टू ओके। ट्राई माय बेस्ट। मतलब इतना पढ़ाई तो मैंने नहीं किया था, मतलब आई हैड नेवर डन सो मच स्टडी इन माय एंटायर लाइफ। तो ये सब हुआ। बट वन थिंग आई डिड वाज आई मेड श्योर कि आई हैड ऑल द नोट्स, मतलब नोट्स क्लासेस सब अटेंड किया। आई मेड ऑल द नोट्स वेरी नाइसली। ओके, मतलब इवन इन मतलब मुझे लग रहा था कि आई विल पास इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, बट एट द बैक ऑफ माय माइंड आई वाज लाइक इवन इफ आई डोंट पास इट दिस टाइम, आई विल स्टिल हैव द नोट्स एंड एवरीथिंग रेडी फॉर द सेकंड अटेम्प्ट अगर सो देने पड़ा तो। नहीं, वही मुझे जानना है, वो सेकंड थॉट कब आया दिमाग में कि अगर नहीं हुआ तो अगली बार तो हो ही जाएगा? सो नहीं ये बैक ऑफ द माइंड में कब स्ट्राइक कर रहा था कि यार इस बार मे बी नॉट? वो वाला फेस कब था? व्हाट व्हाट हैपेंड इज लास्ट के 2 महीने से मॉक टेस्ट चालू हो जाता है, जो ग्रैंड टेस्ट चालू हो जाता है ना, 300 मार्क। हाँ, तो हाँ। उसमें गड़बड़ होने लगा, मतलब उसमें मार्क्स कम आने लगे। समटाइम्स आई यूज्ड टू गेट 125, समटाइम्स आई यूज्ड टू गेट 150 160, ऐसा मतलब बहुत रैंडम होता था स्कोरिंग। तो दैट इज व्हेन आई वाज वरीड, मतलब क्या चल रहा है, मतलब नहीं क्या। समटाइम्स द पेपर यूज्ड टू बी इजी और समटाइम्स द पेपर यूज्ड टू बी वेरी टफ, कि मतलब कभी-कभी 120 मार्क्स ही आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है, कभी-कभी 160। मैक्स आई ओनली गेव लाइक 6 मॉक टेस्ट्स इन द 2 months, ओके, वो भी ओके। द वंस व्हिच वर ऑर्गेनाइज्ड बाय द क्लासेस। हम्म, तो ऐसा हुआ, तो उसमें टॉप आयरिश वाज 160। सो मतलब आई वाज इन अ कंफ्यूजन कि मैं पास हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा। बट देन दिस थिंग, मतलब मार्क्स कम आ रहे, तो आज का मौका अच्छा बुरा गया, तो आई विल फील कि आई एम गोइंग टू फेल दिस अटेम्प्ट। मौका अच्छा ओके। गया, तो आई वाज लाइक आई विल पास दिस। तो ऐसा चल रहा था। तो रोलर कोस्टर चल रहा था और ऊपर नीचे। हाँ, और उसमें क्या हुआ, देन आई डिडंट यूज टू अटेम्प्ट एमसीक्यूज एवरी डे। मतलब व्हाटएवर मतलब बच्चे, आई यूज्ड टू गेट टू नो कि पीपल आर अटेम्प्टिंग एमसीक्यूज, ऐप्स है, अच्छे अच्छे ऐप्स है। आपने भी रेकमेंड अच्छा। किया था प्रीपीजी आपके वीडियो में। तो हम्म, आई वाज अवेयर ऑफ ऑल दिस, बट आई डिडंट यूज टू मतलब टेक इट सीरियसली। मतलब आई वाज लाइक अभी क्लासेस वाले बता रहे हैं कि इवन इफ यू डू दिस इट इज गोइंग टू बी इनफ। सो आई वाज मतलब इन दैट थॉट कि बेसिकली मतलब इंफॉर्मेशन इतनी सारी हो गई थी कि वो कंसोलिडेट नहीं हो पा रही थी, अपना एक इंडिविजुअल प्लान नहीं बना हाँ, पाए। प्लान नहीं बना पा रहे थे। और कैसे होता था, आई वाज फॉलोइंग व्हाटएवर द क्लास मतलब द ब्लाइंडली। इंस्टीट्यूशन वाज टेलिंग मी, ब्लाइंडली। हाँ, मतलब क्योंकि कुछ खुद का कुछ प्लान नहीं था, और बेसिकली पोर्शन और सिलेबस कंप्लीट करने के लिए वी आर यूजुअली डिपेंडेंट ऑन द क्लासेस, अब इफ यू आर अटेंडिंग द क्लासेस। सो
वी यूजुअली ट्रस्ट देम कि मतलब नहीं, वो बात भी अच्छी है कि मतलब वी ट्रस्ट देम एंड वी फॉलो देम, बट क्या होता है समटाइम्स ना, मतलब आई वाज हैविंग वेरी हार्ड टाइम कोपिंग अप विद फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, क्योंकि क्या होता है टीचर आके फैकल्टी आके 200-250 बच्चों का क्लास होता था, उसमें पढ़ा के चला जाता था। आप नोट्स बना लेते थे, बट समटाइम्स क्या होता था, मतलब 8 घंटे की क्लास में यू कैन नॉट बी अटेंटिव फॉर द होल 8 आवर्स। 2-2.5 घंटे यू वोंट बी कंसंट्रेटिंग, तुम बस नोट्स लिख रहे हो। सो तो आशीष, उसमें मुझे ये बताओ, जब जब कंसंट्रेशन थ्रू आउट एक सेम लेवल पे नहीं बन पा रहा है, वो डिप आता ही है, सो वाज देयर, जो आपने पहले पढ़ाई करी थी ड्यूरिंग योर एमबीबीएस डेज, सो वो वाली पढ़ाई क्या हाँ इस प्रिपरेशन में और जो क्लासेस आप अटेंड कर रहे थे उसमें कहीं से भी कुछ ओवरलैप हो रहा था? लाइक थोड़ा भी लग रहा था कि हाँ यार ये चीज पहले पढ़ी हुई है? हाँ, नहीं वो हो रहा था, बट दैट वाज ओनली फॉर द क्लिनिकल्स बिकॉज़ ओके। आई हैड मतलब कुछ सब्जेक्ट्स आई मतलब पीडियाट्रिक्स, सर्जरी, ईएनटी, ये सब्जेक्ट्स बहुत फ्रेश थे मेरे माइंड में। आई वाज वेरी थॉरो, मतलब आई हैड स्टडीड दिस इन माय थर्ड एंड फोर्थ ईयर, अच्छे से पढ़ा था, तो बेसिक मुझे पता था सब्जेक्ट्स ये। के लिए बट पहले ये। हाँ, जो मतलब जो बोलते हैं ना कि एनाटॉमी, बायोकेम, फिजियो, पैथो, फार्मा और माइक्रोबायो, दीज आर द कोर टू पास करेक्ट। एमसीआई, सॉरी, ये सब्जेक्ट्स ही बहुत वीक थे। नहीं तो मेरे को एक बात बताओ ना, जब वीक थे तो क्लासेस में इन सब्जेक्ट्स पे ध्यान दे नहीं पाए, या दिमाग में बैक ऑफ द माइंड वही था कि नहीं यार आई एम वेरी वीक इन दी सब्जेक्ट्स, तो वो सेम बैगेज जो दिमाग में वीकनेस का बना रखा था, वो वो फॉग हट ही नहीं पाया दिमाग से, ऐसा कुछ था? हाँ हाँ, आई कुडंट गेट ओवर द फैक्ट कि मतलब आई कैन डू, मतलब लिटरली आई ड्रॉप्ड, आई डिडंट स्टडी फिजियोलॉजी, मतलब आई मतलब डिड छोड़ जस्ट वन दिया? रीडिंग फिजियोलॉजी, छोड़ दिया था, कंप्लीटली छोड़ दिया था, फिजियोलॉजी छोड़ दिया था, पैथो छोड़ दिया था और माइक्रोबायो छोड़ दिया था, तो दैट वाज अच्छा। अ वेरी मेजर चंक। तो छोड़ दिया, मतलब आई जस्ट डिड वन रीडिंग, मतलब आज क्लास में पढ़ा है, आज घर जाके पढ़ा, उसके बाद पढ़ा ही नहीं, ऐसा हुआ था। अच्छा तो ठीक है, And चलो। the other ओके। belief what I had was, I thought my clinicals were very strong, मतलब जैसे OB/GY, PSM and surgery, these three consist of 120 marks, so I was hoping कि if I get 70 or 80, it would be enough for me to manage the exam, मतलब 70-80 मार्क्स अगर इसमें आ जाएंगे मतलब 120 में। कैलकुलेशन करके बट देख लिया था कि जो छोड़ोगे उसके हिसाब से भी चल जाएगा काम? हाँ, तो उस हिसाब से मैंने वो अच्छा। सब्जेक्ट छोड़ दिए, बट कभी कभी मतलब सर्जरी जो था, सर्जरी is a easy subject, but it cannot give you 25 out of 30, बिकॉज सी, एग्जाम में वो नहीं दे पाएगा। वहीं पे अभी हम क्लिनिकल क्वेश्चंस की भी बात करेंगे, वो उसके लिए मैंने सेकंड पार्ट रखा हुआ है। सो ठीक है, चलो ये स्ट्रैटेजी आपने बना ली। अब मुझे बताओ, फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्जाम डे क्या था? उस टाइम पे दिमाग में क्या था? नहीं, एग्जाम के पहले चैंटिंग कर रहे थे, वन लाइनर्स बहुत पढ़े थे, तो आई वाज प्रीटी श्योर कि मतलब आई नो कि मेरा प्रिपरेशन इज जस्ट इनफ टू पास, तो आई वाज लाइक इफ दिस वन लाइनर्स आर गोइंग टू हेल्प देन आई विल पास, बट एट द ऑन द डे ऑफ द एग्जाम फर्स्ट पेपर बहुत टफ था, तो मेंटेलिटी बहुत बिगड़ गया था। फर्स्ट पेपर टफ क्यों था? बिकॉज आई हैड ड्रॉप माइक्रो, फिजियो और सब कुछ तो पैथो, छोड़ा हुआ था। सब कुछ तो छोड़ा था, तो मैं दैट्स मतलब इन द सेकंड अटेम्प्ट आई सेड टू माय सेल्फ, व्हेन मतलब तुमने सब सब्जेक्ट्स जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट पेपर के वही तुमने छोड़े, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि यू विल हैव अ गुड फर्स्ट पेपर? एग्जैक्टली। सो जो मुझे लग रहा है कि फर्स्ट पेपर के ब्रेक में ही, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट के ब्रेक में ही आपको पता लग गया होगा फर्स्ट पेपर के बाद में कि यार ये तो गड़बड़ हो गई है, जो फर्स्ट पेपर के हाँ सब्जेक्ट्स हैं वो सारी छोड़ दिए हैं, तो अब क्या क्या ही होगा? हाँ, तो बट लकीली सेकंड पेपर में देयर वाज सो मच ऑफ ईएनटी एंड सर्जरी, उसकी वजह से आई मैनेज टू गेट अप टू 143, डिसेंट स्कोर। मतलब decent score, मतलब pretty respectable. If you go beyond 143, you can definitely pass in the next attempt, मतलब if you are getting between 140 to बट 150. व्हाट एग्जैक्टली यू हैड इन द बैक ऑफ योर माइंड स्टार्टिंग से ही वही चीज एग्जाम डे पे भी सेम हुआ? कंडीशनिंग ही वैसी हाँ कर दी सेम, थी ना आपने? हाँ अच्छा। नहीं, but it was a very confusing period, मतलब
तुम कुछ करो भी ना तो यू डिडंट हैव द कॉन्फिडेंस, ऐसा लग रहा था कि कोई बता रहा है इसलिए यू आर डूइंग इट. I get And it. then this was my first attempt. And in the ठीक है. second attempt, I started my preparation. I went back to Gautam Nagar, but I didn't join my classes. I was doing self study. फिर lockdown आ गया, ये हो गया, and then I came back home. तो I had never been home for such a long period. मतलब 4 महीने घर पे रहना है, पढ़ाई करना है, घर वाले बहुत से लोग और सब लोग घर पे, लॉकडाउन है. तो मतलब घर पे इतने दिन बाद I was staying, and उसमें भी the house was full, मतलब हाउसफुल था क्योंकि सब लोग घर पे रह रहे थे. Correct. तो the first month, as soon as I came home, the first month was very tough to get the motivation to start studying regularly. मतलब पढ़ाई हो रहा था, but there was no schedule. तो रिजल्ट के बाद से कितना टाइम लग गया? 3 months. 3 months लग गए दोबारा स्टार्ट करने के? दोबारा स्टार्ट करने के मतलब एक्चुअल मतलब सीरियस विद अ शेड्यूल फॉलो करने के लिए. वो भी कब स्टार्ट हुआ सर? आपका वीडियो आया, आपने एक 100-day प्लान बनाया था. वो वीडियो देखने के बाद I took notes. आपका वो PDF, उसका जो वो PDF था वो डाउनलोड किया, I put it on my wall, और उस पे accordingly I started, and then I made my own diary also. इसमें मैंने सब लिख के रखा, इसमें मैंने सब लिख के रखा कि how many days I am going to take. But the thing was, मतलब बहुत सारे most of the things were so fresh in my mind. तो जैसे आपने 90 days plan दिया था, I made it 60 days plan for myself. I thought कि I'll do 3 readings this time. So accordingly I did it. और फिर you were. So if you guys want to have a look at his diary, just comment down below so that I can ask him अगर हम थोड़ा सा pics या कुछ PDF arrange करवा पाए, जिससे आपको एक idea मिल जाए कि आपको कैसे plan out करना है सब कुछ. हाँ, फिर? नहीं, this diary is something which मतलब इसमें first page पे मैंने I have put the whole schedule कि मतलब कौन से दिन पे कितना दिन पे I have to complete all the subjects. जैसे आपने schedule दिया था वही हिसाब से मैंने इसमें schedule दिया. And what I did was I used to write day to day. मतलब आज I started my actual preparation on 21st of May. यहाँ पे date भी. So this was my very first day. मतलब जहाँ से मैंने मेरा seriously scheduled preparation start किया. और उसमें I used to write कि मतलब आज मैंने कितना mock, कितने मतलब if I give a mock I used to write the marks. Whatever I have studied I'll write there, how many chapters. ऐसा करता था. So this is how. मतलब at the end of the day I had मतलब I used to write all whatever I've studied so that I know कि मतलब I am on a track or not. तो ऐसा होता था. So there were days मतलब कुछ दिन में I didn't have मतलब कुछ नहीं होता था लिखने के लिए. उस दिन कुछ नहीं होता था लिखने के लिए. कभी नहीं हो पाता पढ़ाई, ऐसा होता था. So there are empty dates also जिसमें मैंने miss भी किए dates 2 दिन. हाँ तो वो अब जैसे when I am also preparing for my NEET PG, जब नहीं हो पाता है ना कुछ, and when you don't have anything to write for that day, that is when वो regret वाली feeling आती है कि यार next day तो करना ही है. yes sir. तो next 2-3 दिन फिर से बहुत अच्छे आते थे because वो एक दिन is a very traumatic, मतलब बहुत traumatic होता था कि मतलब I used to look back on that day, मतलब वो दिन वो पूरे वीक में ना वही चलता था यार, I have wasted a day, so I have to cope up. So accordingly हो जाता था. But फिर से 2-3 हफ्ते बाद फिर से ऐसा एक दिन आता था फिर से कि नहीं हो पाता था पढ़ाई. So what I did, मतलब as the preparation matured, what I started doing was when I felt कि आज का दिन अच्छा नहीं हो पा रहा है, I am having a very restful day, तो तुरंत मैं क्या करता था, I used to take a mock और solve at least 200 to 300 MCQs on that day. मतलब at least कुछ पढ़ा नहीं है तो at least I'll have a good feeling कि मतलब like वो zero नहीं जाएगा दिन में, थोड़ा productive हो जाएगा. Zero नहीं जाएगा दिन. हाँ तो at the end of the मतलब even मतलब रात को 11 भी बज गए ना तो I used to give a mock. 150 marks से क्यों ना हो, I'll give a mock, and if I score good I'll be like okay ठीक है आज का दिन waste हुआ but I still got good score in the mock. And I gave, and honestly for everyone listening to this, and ये बहुत common doubt है कि मतलब how much marks should I get in a mock. So in my second attempt I gave almost 12 to 14 mocks. And the mocks mostly were the prep ladder और Unacademy, मतलब सब प्लेटफॉर्म पे जो मॉक्स आते थे और आपके इस पे भी मॉक देते थे बट वो सब्जेक्ट वाइज होते थे. तो वो हिसाब से मैंने मॉक्स दे दी. बट आई विल टेल यू ऑनेस्टली I only managed to pass 3 of those mocks. Okay. That too
out of those 3, the 2 mocks I passed were in the last month of the preparation. So mocks don't really define कि मतलब आप exam pass होने वाले हो. Correct. नहीं होने वाले. हाँ. So you just have to keep giving the mock because it is something which will help you keep you on the track कि मतलब तुमको पढ़ाई करना है. और कैसा होता है when you give मतलब जैसे prep ladder का जो mock है ना, I'm not promoting prep ladder, but जो prep ladder का mock होता है ना, उसमें they give you subject wise performance also. मतलब you have done weak, good, which subject is, तो ऐसा categorize. So I used to make a list of all that also. और उसमें in the end I'll write कि मतलब which are my strong subjects, which are my weak subjects. So वैसा list बना के रखता था कि these are my weak subjects. So no matter what, मतलब तुम कुछ भी कर रहे हो, you will always have that thing in this mind कि if you come across some question in the next mock, जैसे physics, you will know this is my weak subject, so I have to pay a little extra attention to this particular question because this on the very weak side of your preparation. ऐसा होता था. तो I used to manage, मतलब ये बोल रहा हूँ. और इससे एक और चीज अच्छी क्या होती है when you keep the note कि मतलब कौन से अच्छे strong subjects, when you get मतलब लगातार 3-4 मॉक में when you get a particular subject strong, you know that this subject is your forte and you have to just not मतलब उस पर टाइम देना है, ज्यादा टाइम नहीं देना है. ऐसा होता है मतलब so you know you have an understanding कि ये मेरा अच्छा सब्जेक्ट है and I cannot do silly mistakes in this one. और एग्जाम के दिन पे ना how many times मतलब जितना silly mistakes अवॉइड करोगे ना, the closer you get to your target. मतलब oh shit यार मुझे ये पता था. The number of times you avoid ये oh shit यार मुझे ये पता था, the closer you get to the exam. क्योंकि क्या होता है after the exam ऐसा एक माहौल बन जाता है, सब लोग को पता होता है, मतलब everyone has studied, everyone comes prepared. But when you discuss something, you get the feeling कि यार oh shit यार मुझे पता था, but I still lost it somewhere. हाँ. So for that I think you should मतलब in my first attempt I had only prepared 11 to 12 subjects out of 19. But in my second attempt I was thorough with almost 15 to 14 subjects, which is enough. मतलब I dropped medicine in my second attempt and in my first attempt, both attempts. But I don't recommend dropping medicine now because क्या हो रहा है, because the questions are getting very clinical. Question समझ नहीं आ रहा पैथो का है, फार्मा का है कि मेडिसिन का है. अभी उस पे I'll come to that. वही अब थोड़ा सा उसके बारे में ढंग से बात करते हैं. प्रिपरेशन आपने करी थी सेकेंड अटेम्प्ट में भी लाइक यूजुअल एफएमजी ही सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन की जैसा यूजुअल पेपर आता है. सो अब मेरे को ये बताओ करेक्ट कि जिसमें 30-35% 40% तो वन लाइनर्स ही होते हैं और बाकी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, रिपीट्स आते हैं, तो वो मिला के अपना बन जाता है. सो what exactly was the paper type for this August attempt? Like जो इतना सब कुछ इस बार हुआ, so जब एग्जाम दे रहे थे, so what were the feelings कि देते हुए क्या लग रहा था, कैसे क्वेश्चन पता लग रहा था कि हाँ यार ये मेरा सही हो रहा है. so थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा बताओ. तो what happened is नहीं ऐसा मतलब this time मैंने mentality बना के रखा कि I had so much inspiration from within कि मतलब it is all in the head, you have to have a good mentality on the day of the exam. I was very much prepared. And आपने जैसे बताया था कि give the mocks on the exact timing of the day, मतलब सुबह के टाइमिंग में जैसे एग्जाम का टाइम था 9:30 से 12:30 बजे, जो एग्जाम के टाइम पर I used to give the mocks in the last month, उसी टाइम पे मॉक देता था. तो I made sure कि my mind stays sharp at that particular time and on the particular day of the exam. So I started with that. Questions clinical आने लगे, मतलब I didn't realize कि मतलब paper was very clinical or anything. I got to realize this when I came back out of the examination hall. Then everyone started discussing paper बहुत clinical था ये था. Then I realized कि हाँ paper थोड़ा clinical, बहुत ज़्यादा clinical था. But I didn't feel it when I was giving it because this time I had prepared my patho बहुत भर के आया था. But I was very much prepared. Patho PSM बहुत भर के आया फर्स्ट पेपर में. But I was very much prepared. तो मतलब क्वेश्चन कितना भी क्लिनिकल होता नहीं, फिजियो फिर भी ड्रॉप हो गया था, फिजियो नहीं हो पाया. नहीं but, तो इस बार अच्छा, इस बार क्या छोड़ा था?
So how did you manage कि इस यार बार ठीक है पैथो बहुत ज्यादा आता ही है, मेडिसिन बहुत ज्यादा आता है, इनफैक्ट क्लिनिकल्स में भी अब जब डर्मा की बात करोगे तो डर्मा भी मेडिसिन के साथ क्यूटेनियस डिसऑर्डर्स में आ जाएगा. सो वो इंटीग्रेशन कैसे एग्जाम में फिर होते गए क्वेश्चंस जस्ट बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था इस वजह से? हाँ नहीं, in the last month I'll tell you sir, I've almost attempted almost 200 to 300 MCQs every day. तो अच्छा. उस वजह से I didn't feel the pressure of attempting the questions. मतलब बहुत casually questions, मतलब I used to read the questions very casually. मतलब ऐसा नहीं कि 5 लाइन 6 लाइन का क्वेश्चन आ गया तो अरे बाप रे क्या हो गया, ऐसा कुछ थॉट ही नहीं था. बिकॉज आई हैड अटेम्प्टेड सो मेनी क्वेश्चंस कि आई हैड दिस फीलिंग कि नहीं, एंड आई हैड डेवलप्ड अ थिंग कि मतलब क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, देयर इज ऑलवेज अ हिंट इन इट, नो मैटर व्हाट. तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, जैसे पैथो के क्वेश्चंस आ गए मेरे स्क्रीन पे 2-3, और उसमें क्या था, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े थे बट देयर वर स्लाइट हिंट्स. मतलब जैसे ऑर्फन एनी था, तो इट वाज वेरी क्लियर कि मतलब क्या है, आंसर क्या है, पता चल गया था कि पैथो का क्वेश्चन है और पैपिलरी कार्सिनोमा का ये है. तो मतलब उसमें ऑप्शंस भी वही आए. सो इट वाज, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मतलब ये पता है, तो क्वेश्चन कितना भी बड़ा होना दे. सो दैट इज वेयर आई स्टार्टेड डेवलपिंग मोर कॉन्फिडेंस कि मतलब क्वेश्चन कितना भी बड़ा होना दे, देयर इज गोइंग टू बी हिट. तो स्लोली करके वैसा होगा. हाँ, और फिर ऐसा हुआ. एंड देन पूरे मतलब एग्जाम होने तक आई डिडंट रियलाइज कि मतलब फर्स्ट पेपर के बाद आई डिडंट रियलाइज कि पेपर वाज वेरी क्लिनिकल. बाहर आने लगा सब रो रहे कि पेपर बहुत क्लिनिकल था, बहुत टफ है ये वो. then I look back and I was like, हाँ paper was very clinical, but I didn't feel it was very tough because I still had the confidence कि I am going to get like around 80 to 90 questions right in the first paper. So that was a pretty major boost for me कि अभी, और उसमें सर्जरी, ओबीगायनी, पीएसएम, एएनटी एंड फॉरेंसिक आर्मर 40 मुझे पता था ये मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, और रेडियो भी मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था. तो आई न्यू कि मतलब अभी सेकंड पेपर में तो इसमें से क्वेश्चन बहुत भर के आने वाले. इसलिए if I am scoring 80-90 in the first paper, all I need is another 70 marks to pass this exam. तो I was ready. तो I had this mentality. मतलब एग्जाम के मतलब इतना हल्ला हुआ, मतलब जैसे वो पेपर फर्स्ट पेपर के बाद मतलब सब मतलब इतना कमोशन चल रहा था कि पेपर ऐसा है वैसा है, बच्चा पूछ रहे हैं तेरा कैसा गया ये कैसा. सो बट आई वाज कॉन्फिडेंट कि मतलब हो जाएगा. माय बेटर इज स्टिल, हाँ मेरे जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स वो अभी आने वाले हैं, मतलब सेकंड पेपर में आने वाले हैं. सो आई वाज कॉन्फिडेंट कि आई विल डू इट. बट देन सेकंड पेपर वाज मोर टफ बिकॉज़ आई हैड दिस फीलिंग कि क्वेश्चंस बहुत क्लिनिकल आ रहे. तो दैट थिंग गॉट इनटू माय हेड कि मतलब क्वेश्चंस क्लिनिकल आ रहे. तो क्या हुआ, 10 क्वेश्चंस ऐसे 5-5 लाइन के क्वेश्चंस आ गए 10. तो आई यूज्ड टू गेट कंफ्यूज्ड कि क्या चल रहा है. और उसमें इस बार क्या हुआ, आई ड्रॉप्ड ऑप्टा. Optha is my very weak. Optha was my weak subject, so I dropped Optha. Optha, physio, medicine, drop कर दिया था मैंने. So when you say you have not read the subject, क्या मतलब कुछ भी नहीं किया था, उसके important topics भी नहीं किए, कुछ भी नहीं किया? नहीं. I मतलब drop किया मतलब I did MCQs for those subjects, one liners and one reading, but revise नहीं किया उसको. मतलब thoroughly नहीं पढ़ा था? thoroughly नहीं पढ़ा था, but I had the general idea कि मतलब ऑप्था से कुछ क्वेश्चन आएगा तो I know what to expect. Okay. मतलब ऐसा नहीं कि मतलब complete drop, मतलब वही जैसे आई की एम्ब्रियोलॉजी से अगर क्वेश्चन आया है, क्रेनियल नर्व से आया तो वो कर लोगे, उस टाइप से था ना. हाँ, completely नहीं छोड़ा था क्योंकि one liner I had studied one liners for physio, और MCQ मैंने सब सब्जेक्ट से किया था. मतलब I had solved around like 2000 MCQs for both physio and optho in the last 15-20 days. मतलब नए सब्जेक्ट पता नहीं है, बट आई यूज्ड टू अटेम्प्ट एमसीक्यूज, मतलब जस्ट इन केस कि मतलब दिमाग एमसीक्यू सॉल्व करने से टॉपिक से ही पता लग जाता है. क्वेश्चन और आंसर दिमाग, हाँ क्वेश्चन और आंसर दिमाग में बैठ जाता है कभी-कभी. सो और बच्चे बोलते थे कि मतलब बच्चे बोल रहे थे एग्जाम पर क्वेश्चंस रिपीट नहीं हुए, ये नहीं, बट आई डोंट फील कि मतलब ऐसा हुआ है. क्वेश्चंस वर रिपीटेड बट दिस टाइम दे पुट अ क्लिनिकल सिनेरियो टू इट. मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में देयर इज दिस टॉपिक मेंडेलियन जेनेटिक इनहेरिटेंस पैथोलॉजी का. तो उसमें 2 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, उसमें से 2 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं. पिछली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में दिस वर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, मतलब उन्होंने पूछा सिकल सेल एनीमिया क्या है, तो उसमें से बताओ ऐसा. बट इस बार क्या हुआ, इस बार उन्होंने हीमोफिलिया पूछा. तो हीमोफिलिया में उन्होंने इमेज दी, उसमें हीमोफिलिया में उन्होंने 3 इमेज दे दिए. तो यू हैव टू फिगर आउट कि
अगर जिसको पता ही नहीं है वो इमेज क्या है, तो ही कैन नॉट जस्ट मतलब डायग्नोसिस बना और फिर उसका Correct. जेनेटिक इनहेरिटेंस बना. बट फॉर दिस टाइम आई वाज प्रिपेयर्ड. मुझे पता था ये दो क्वेश्चंस श्योर. एंड आई विल गारंटी कि दिसंबर में जो एग्जाम होना, मतलब अभी जो दिसंबर में एग्जाम जो होने वाला है 4-5 दिन में, उसमें भी इसमें से दो, ये टॉपिक से दो क्वेश्चन आने ही आने हैं. जेनेटिक इनहेरिटेंस Correct. बहुत फेवरेट टॉपिक है. एंड आई हैव सीन दिस. मतलब बस एफएमजी नहीं, ये नीट में भी आता है, मतलब अच्छे से अच्छे एग्जाम में आ जाता है, एम्स में भी आता है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है. तो जो मैं पूरा आपका इससे मैं समझाऊं कि इस बार सबसे पहली बात जो अच्छी हुई कि यू सॉल्व सो मेनी एमसीक्यूज और अपने लिए एक शेड्यूल बना के रखा था. यू गेव सो मेनी मॉक टेस्ट. सो उसकी वजह से एक ओरिएंटेशन पहले बन गया था कि एमसीक्यू सॉल्व करना कैसे है. सो डर नहीं लग रहा था चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ रहा है. करेक्ट. सो इस वजह से यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट. हाँ, मतलब एग्जाम के मतलब सेकंड पेपर टफ होने के बाद भी व्हेन आई केम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, आई डिडंट फील, मतलब 3-4 घंटे तो मुझे, जब तक मैं घर नहीं पहुंचा तब तक मुझे लगा नहीं कि मैं फेल होने वाला हो गया हूँ. आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि आई हैव डन वेरी प्रीटी मच, मतलब अच्छे से किया है. So which is exactly opposite from the first attempt. हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट जैसे पेपर हो गया, आई वाज लाइक फिर से आना है गौतम नगर, फिर से पढ़ाई करना है, फिर से स्टार्ट करना है. सो आई वाज वेरी मच, बट इस बार वैसा मेंटालिटी था ही नहीं. तो आई केम होम एंड देन व्हेन आई केम होम, यूजुअली क्या होता है एग्जाम के बाद क्वेश्चंस बाहर आने लगते हैं एंड टीचर स्टार्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चंस. इस बार क्या हुआ, क्वेश्चंस इतने लेंदी थे, बच्चों को 2 दिन लग गए क्वेश्चंस रिकॉल करने में. करेक्ट. तो उसमें मेरा कॉन्फिडेंस और डाउन हो गया. मतलब मैं बोला बच्चों को क्वेश्चंस ही नहीं रिकॉल हो रहे, नहीं समझ. बट फिर धीरे 2-3 दिन बाद धीरे धीरे क्वेश्चंस आने लगे. एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग कि मतलब फॉरेंसिक मेरा बहुत स्ट्रांग था. आई गॉट अराउंड 9 आउट ऑफ 11 क्वेश्चंस राइट इन द एक्चुअल एग्जाम, दो इट वाज इवन इमेज बेस्ड क्वेश्चन. तो ऐसा होने लगा. मतलब ओबी गायनी में भी ऐसा हुआ, पहले 15 क्वेश्चंस आए, फिर बाद में बाकी के 10 निकल आए. तो उसमें पहले 15 में से आई गॉट 11 आउट ऑफ 15 राइट. So I was pretty much confident कि I'll do it. But I was hoping a score of around 170, क्योंकि I thought कि इस बार ज्यादा मेहनत लगे और पिछले बार 140 मार्क्स. हाँ, but I got 157. I was disappointed at the first after looking at the score. But then I got the result of the whole this thing, मतलब बोला बस 16 से बच्चे पास. So I was like the exam was pretty tough. So thank God I made it. Very good. Because in the end it doesn't matter कि मतलब आपको मार्क्स कितने आ रहे. Because my teacher, my mentor used to always tell me कि मतलब 149 is fail but 149 is pass, and there is a big difference between these two. मतलब तुम 149 लाने के बाद इतना, मतलब you are not sure, गारंटी नहीं है कि तुम अगले एग्जाम में भी you will get 149 plus, मतलब 150 you are going to pass. ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है कि मतलब कि you are going to pass if you get 149 in this attempt. ऐसा नहीं होता था. तो दैट इज व्हाट, मतलब मेरे दिमाग में लग गया कुछ भी हो जाए यू हैव टू गेट बियॉन्ड 150. और मैं सबको भी यही बोलूंगा कि नो मैटर व्हाट, मतलब इफ यू आर नॉट एवरेज देन इट इज प्रीटी गुड, बट इफ यू आर एन एवरेज जस्ट मेक श्योर यू गेट बियॉन्ड 150 और उसके आगे लाना ही लाना है. मतलब नो मैटर व्हाट, मतलब तुम टारगेट बनाओ, मतलब धीरे धीरे व्हेन यू स्टार्ट द प्रिपरेशन योर टारगेट इज 200, बट धीरे धीरे इन द लास्ट मंथ यू गेट टू नो कि योर एक्चुअल कैपेबिलिटी. मतलब and everyone cannot be same. मतलब तुम्हारे दोस्त को 190 आ रहे तो you should also get 190. That is not the case. So that is where I want to ask you if you have to give an advice to someone जो भी start कर रहे हैं, जो first year में second year में हैं, जिन्होंने freshly admission लिया है. So what would be your 2 cents उनके लिए कि यार मैं ये बोलता हूँ और whatever regrets you have had in the complete journey till now. So अगर उनको बोलना है कि तुम इस तरीके से स्टार्ट करो या ये चीजें अवॉइड करो, so what would be that message from your side? For the beginners, मतलब जो फर्स्ट सेकंड ईयर में रहेंगे, I'll say कि मतलब just study day to day. मतलब ऐसा भी नहीं कि तुम मतलब एकदम डिटेल में पढ़ाई करने लगो. If you want to enjoy being in college, enjoy it. But कैसा है, you just make sure कि you study day to day. मतलब 2 घंटे 3 घंटे it is pretty much enough. And make sure कि your concepts are clear, because facts keeps changing and facts तो बाद में हो ही जाता है. facts तो इतनी बार रट्टा मारो वाले लर्निंग है, वो तो कभी भी कर सकते हो. हाँ, बट concepts clear होना चाहिए. concepts इतना मतलब बहुत इंटीग्रल पार्ट है. मतलब जैसे एनाटॉमी का है, एनाटॉमी फिजियो का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. आई एम स्टिल ट्राइंग टू स्टडी फिजियो
for my next next exam. So I'll tell you मतलब ऐसा the strategy मतलब for physio, the best resources, don't worry. फिजियो और फार्मा मैंने अच्छे से पढ़ा था सेकंड में, बिकॉज दवा दारू का नाम तो पता होना चाहिए, बिकॉज हर कोई पूछते बिल्कुल रहते हैं डॉक्टर तो करेक्ट। दवा तो पूछते रहते हैं. सो आई डन माय फार्मा वेरी नाइसली. बट पैथो पैथो बहुत अच्छा, मतलब पैथो इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मतलब आई हैव Interesting गेन subject सो मच if done इंटरेस्ट इन दैट. properly. बट यूजुअली व्हाट हैपेंस इज इन द सेकंड ईयर पीपल आर वेरी स्केर्ड ऑफ पैथो. जनरल पैथो सुनते ही बच्चे मतलब थोड़े से हो जाते हैं कि मतलब कितना बड़ा बुक है ये वो. इंटेंसिव हो बट जाता है पैथो थोड़ा। इज अ वेरी नाइस. हाँ, मतलब मतलब you get to feel कि अभी you have started to become, the process has begun of you करेक्ट। becoming a doctor. But पैथो के concepts clear रखो. बहुत simple चीजें हैं, मतलब small details which matter. मतलब मेरा मेरा my clinicals were strong because I knew the concepts behind every particular thing. I got a good professor for surgery, so my surgery has been very good. तो Okay. उसी वजह से आई हैड द कॉन्फिडेंस कि आई कैन डू सर्जरी. पीडियाट्रिक्स बहुत अच्छा था मेरा. फॉरेंसिक तो इंडिया आके पढ़ा मैंने. पीएसएम भी. पीएसएम आई विल एम्फसाइज कि पीएसएम, ओबीजीवाई, सर्जरी, फॉरेंसिक, डर्मा, रेडियो, देन योर एनएस एंड साइकेट्री, वेरी इजी सब्जेक्ट्स. मतलब इसमें ज्यादा रट्टा मारने की बात नहीं होती है. यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि यू लर्न कंसेप्ट वाइज. ऐसा नहीं कि तुम बैठने पढ़ो रट्टा मारो 4-5 बार, नहीं. जस्ट सिंपल रीडिंग है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द लाइन व्हाट इट मींस. वंस यू अंडरस्टैंड इट, वैसा होता है. वो मैंने जो मेरा लास्ट रीडिंग किया फॉर दिस सर्जरी, पीएसएम, ओबीजीवाई, व्हाट आई डिड वाज आई ओपनड एन वन लाइनर्स बुक. आई यूज्ड टू स्टडी द वन लाइनर्स. वन लाइनर्स आर यूजुअली what which have been repeated in the previous exam, मतलब अलग-अलग एग्जाम में रिपीट. तो I used to read that. If that line is there, then I'll study the same line from the book. So I'll correlate. मतलब important. मतलब if you're confused कि मतलब important क्या होता है, so just take a one-liner book and study that from them. तो ऐसा correlate करके पढ़ा था. I took around, in the last month I gave almost 10 days for PSM, OBGY and surgery. So I made sure कि I am thorough with. Okay. So previous year papers किए थे? Previous year papers I had done all previous year papers. मतलब I did until some कुछ papers I did till 2017 and some I did till 2018. And that's मतलब I didn't do NEET का papers, but I made sure कि मतलब I did NEET 2020 and AIMS में जो 2020 तो हुआ था. बाकी तो I only did FMG papers because I was hoping कि this time the exam might be easier because of the pandemic and all, but it didn't happen. But that doesn't mean कि that is also a lesson कि you cannot take things for granted. कि मतलब if you are preparing, that part is fine, but you cannot take certain thing कि मतलब अभी ये सब, these are the circumstances, so people will make it easy for you. You cannot expect things like those. मतलब that has been a very good lesson for me this time. कि you cannot take things for granted. You cannot expect things. You just have to make sure, you have to trust your preparation, you have to believe in yourself. That is the best you can do. I highly appreciate, man. Really, I have thoroughly enjoyed the interview. बहुत ही अच्छा हुआ है ये conversation. I hope and I expect कि ये forthcoming students के लिए भी बहुत beneficial होगा. So first of all, I really appreciate the confidence that you have. And mock test के बारे में you were saying, right? So grand test and mock test, what I personally believe is they are like a mirror. वो एक आईना होता है. Like when you don't study properly, थोड़ा सा down लग रहा हो, so just सब बंद करो और एक mock test उठा के दे दो. You get to see कि कहाँ पे सही है, कहाँ पे गलत है, और जो वो feeling होती है ना यार कि इतना सब कुछ गलत हो रहा है. And then when you refuel everything, तो फिर एक नई energy आती है. That is when mock test and grand test help you. इससे ज़्यादा like marks हमेशा कोई reciprocate नहीं करते हैं उसके, but वो एक resilience आ जाता है 3-3.5 घंटे बैठने का एक साथ, और वो एक मैच प्रैक्टिस होती है. It's not the final day. वो final day के लिए तो preparation आप कर ही रहे हो. So सारी strategy मुझे बहुत personally बहुत अच्छी लगी, and somehow inspiring minds has also influenced you in a way कि वो strategy आपने अपने हिसाब से modify करी. नहीं, it's all your efforts, your hard work.
one thing which I want to tell everyone is whatever strategies we tell you, it's not कि वो एक hard and fast चीज है आपके लिए, राइट वो एक जेनेरिक स्ट्रैटेजी है जो मेरे लिए काम करी है, मेरी टीम के लिए, लाइक आशीष के लिए भी करी है. सो आप उसको अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करो. आर यू गेटिंग इट? वो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि यार वही A to Z पूरा वैसे ही करना है. उसको लेके निटपिक करो अपने हिसाब से और अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ, उसको स्टिक करके रखो. हाँ आशीष. Because what sir is saying is same. Sir ने 90 days strategy बनाया था, but I made my own strategy of 60 days with the same plan here. मतलब कि तुम इतने इतने सब्जेक्ट इतने दिन में पढ़ो, and I gave the mocks which he gave. So Correct. I'm just supporting what he is saying. वेरी गुड यार, बहुत अच्छी बात है. सो इंस्टेड ऑफ कि आप लोगों से पूछो क्या करना है क्या नहीं करना है, यू योरसेल्फ नो क्या करना है. जितना भी टाइम हो दैट्स इनफ. और स्टार्टिंग से दोज हु आर स्टार्टिंग फ्रेश, लाइक आशीष ऑलरेडी सेड, कि टच में रहो, अपने कंसेप्ट्स क्लियर करके रखो, देन ओनली इट इज गोइंग टू गेट इजियर फॉर यू. नेक्स्ट आ चुका है. नाउ देयर इज नो नीड टू से कि आने वाला है, इट्स ऑलरेडी देयर. क्लिनिकली ओरिएंटेड सब कुछ हो चुका है. इट्स हार्ड एंड फास्ट कि आपको कंसेप्ट्स पता होने चाहिए. वन लाइनर का ट्रेंड जा चुका है. सो थैंक यू सो मच आशीष. इफ यू जस्ट वांट टू ऐड एनीथिंग देन यू कैन टेक इट. नहीं, I owe you a lot sir, because आपने वीडियो बनाया and I got my inspiration, my schedule from it, and I prepared accordingly. So I owe inspiring minds a lot. It's all your efforts. Thank you so much for considering it. So that's all from our side. If you want to know anything from Ashish, just let us know in the comment section down below. So this was a great interview from our end, and I guess Ashish also enjoyed it. So yeah, and we are coming up with another video for the last 4-5 day strategy, like whatever things you should do before the exam. So stay tuned to watch that. Thank you so much. Okay.